আসসালামু আলাইকুম ওরহমতুল্লাহি ওবৰকাতুহু। বহুদিন পিছত আকৌ এবাৰ আলোচনা কৰিব লৈছোঁ সত্যৰঞ্জন বৰাৰ বিষয়ে। কিছুদিন ধৰি দেখা গৈছে, বিশেষকৈ ৩-৪ দিন ধৰি দেখা গৈছে সত্যৰঞ্জন বৰা এজন মানুহৰ নাম বেছি লৈছে। তেওঁ হ'ল ৱাছিম ৰেজভী। এই ৱাছিম ৰেজভীৰ বিষয়ে আপোনালোকক মই একেবাৰে নকলেও নহয়। তেওঁ প্ৰথমতে ৱাছিম ৰেজভী নাম তেওঁৰ আছিল মুছলিম নাম, মানে তেওঁৰ জন্ম মুছলমান ঘৰত হৈছিল। তাৰপিছত তেওঁ কি কৰিছিল, তেওঁ ৱক্ফ বৰ্ডৰ কিবা ডাঙৰ কিবা নেতা হৈছিল। তেনে সময়ত এতিয়া আপুনি ভালকৈ চাওক, প্ৰথম তেওঁ গ'ল চিয়া। প্ৰথমতে আপুনি ভালকৈ চাব, মুছলমানৰ মাজত বহুত ভাগ আমি দেখা পাওঁ। চিয়া, সুন্নি, ৱাহাবী, হানাফি, চাফি বহুত কিবা কিবি আছে। কিন্তু পবিত্ৰ কোৰাণৰ ক'তো লিখা নাই যে আপুনি চিয়া হ'ব লাগিব, আপুনি সুন্নি হ'ব লাগিব, হানাফি হ'ব লাগিব। প্ৰথমেই ৱাছিম ৰেজভী যি দলৰ আছিল বুলি তেওঁ নিজে স্বীকাৰ কৰিছে বা নিজে দাবী কৰিছে, তেওঁ চিয়া ৱক্ফ বৰ্ডৰ কিবা আছিল। প্ৰথম আছিল যে তেওঁ প্ৰথমেইতো মুছলমান নাছিল। চিয়াসকলক পৃথিৱীৰ কোনো মুছলমানে মুছলমান বুলি নাভাবে, সেইটো প্ৰথম কথা। মানে তেওঁ মুছলমানেই নাছিল, পূৰ্বৰ পৰাই তেওঁ মুছলমান নাছিল। দ্বিতীয় কথা, তাৰপিছত হ'ল যে সত্যৰঞ্জন বৰাই এই ৱাছিম ৰেজভীৰ কথা কৈছে। কিয় এই ৱাছিম ৰেজভীও কিছুদিন আগত, এই 2-3 দিনমান আগত তেওঁ মানে হিন্দু ৰীতি নীতি অনুযায়ী তেওঁ ইছলাম ধৰ্ম ত্যাগ কৰি হিন্দু ধৰ্ম গ্ৰহণ কৰিছে। এইটো সত্যৰঞ্জন বৰাৰ কথা। কিন্তু ৱাছিম ৰেজভী নিজে কৈছে যে মই ইছলাম ধৰ্ম ত্যাগ কৰা নাই, মোক ইছলাম ধৰ্মৰ পৰা বাহিৰ কৰি দিছে। এইটো ৱাছিম ৰেজভীৰ মুখৰ কথা। অৰ্থাৎ ৱাছিম ৰেজভীক ইছলাম ধৰ্মৰ পৰা উলিয়াই দিয়া হৈছে। কিয় তেওঁ ইছলাম ধৰ্মৰ অৰ্থাৎ চিয়াসকলৰ যি মানে মৌলিক নীতি বা তেওঁলোকৰ যি নীতি নিয়ম আছে তেওঁ বিৰোধ কৰিছিল। বিশেষকৈ 26টা আয়াত লৈ তেওঁ আদালতত কেছ দিছিল যে এই 26টা আয়াত পবিত্ৰ কোৰাণৰ পৰা উঠাই দিব লাগে। তেতিয়া আদালতে তেওঁক 50,000 টকা জৰিমনাও দিছিল। কাৰণ কি আছিল? কাৰণ এইটো আছিল যে তেওঁ এই 26টা আয়াত আউট অফ কনটেক্সট তেওঁ বৰ্ণনা কৰিছিল। এতিয়া চাওক, সেই ৱাছিম ৰেজভী এতিয়া হিন্দু ধৰ্ম যেতিয়া তেওঁ গ্ৰহণ কৰিলে, তাৰপিছত সত্যৰঞ্জন বৰাই এতিয়া মানে ইণ্টাৰভিউত হওক বা বিতৰ্কখনতো কৈছে ৱাছিম ৰেজভীৰ কথা। এনেকুৱা উদাহৰণ আমিও বহুত দিব পাৰোঁ যে তেওঁ হিন্দু ধৰ্ম আছিল, তাৰপিছত ইছলাম ধৰ্ম গ্ৰহণ কৰিছে, খ্ৰীষ্টান আছিল, ইছলাম ধৰ্ম গ্ৰহণ কৰিছে, মুছলমানৰ পৰা আকৌ খ্ৰীষ্টান কৈছে। এনেকুৱা উদাহৰণ বহুতে আছে। আপুনি এজন মানুহৰ উদাহৰণ দিলে নহ'ব। আৰু ৱাছিম ৰেজভী যি কিতাপখনৰ কথা সত্যৰঞ্জন বৰাই ইণ্টাৰভিউত কৈছে, সেই কিতাপখনৰ বিষয়ে আজি আপোনাক এটা মই ভিডিঅ' দেখাম। চাওক, সেই কিতাপখনত তেওঁ কেনেকুৱা কথা কৈছে। আৰু তেওঁ ৰেফাৰেঞ্চ কাক দিছে? ইছলামী বিদ্বেষীসকলৰ ৰেফাৰেঞ্চ দিছে। কাক? ইছলামক প্ৰমাণ কৰাৰ কাৰণে। সত্যৰঞ্জন বৰাই ইছলাম বিদ্বেষীসকলৰ ৰেফাৰেঞ্চ দিছে ইছলামক প্ৰমাণ কৰাৰ কাৰণে। अब वसीम रिजवी ने प्रॉफिट ऑफ इस्लाम पर एक किताब लिखी है, मोहम्मद अल्लाह के आखिरी पैगंबर मोहम्मद पर आधारित। अब तो टाइटल में 2 बार मोहम्मद आ रहा है। अरे भाई, थोड़ा बहुत लिखना पढ़ना सीखें तो उससे बात आगे बढ़ेगी। किताब में अपने बारे में भी एक चैप्टर लिखा है, सऊदी अरब में काम करते थे और अंडे खाते थे और क्या करते थे। ऑथर के बारे में किताब के बैक में 5-6 लाइनें छपती हैं। कोई पब्लिशर नहीं मिला किताब का, ऑक्सफोर्ड ने, कैम्ब्रिज ने, सेज ने नहीं छापी, खुद ही छाप दी है किताब। अमेज़न और फ्लिपकार्ट ने ऑनलाइन पे नहीं लिया, इसलिए एक नंबर दिया हुआ है कि आप उस नंबर पे कॉल करें तो वो आपको भेज देंगे। 500 रुपए किताब की कीमत है, और कह रहे हैं कुछ लोगों को हम फ्री में भी भेज देंगे। कोई हमें इससे फायदा नहीं उठाना, पैसे नहीं कमाना, और जितने पैसे बचेंगे वो राम मंदिर में लगाए जाएंगे। राम एक मर्यादा पुरुषोत्तम है। राम के मंदिर में वो पैसा लगाना जो किसी दूसरे धर्म को गालियां देने से कमाया गया हो, वो राम का अपमान होगा। मैं समझता हूं कि अयोध्या में जो राम मंदिर का ट्रस्ट है, उसको वसीम रिजवी से इस किताब के जरिए आए एक भी पैसे को एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए।
मैं संविधान का एक विद्यार्थी हूं। संविधान की सबसे बड़ी वैल्यू है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। मैंने पहले भी कहा था कि वसीम रिजवी को हक है कि वो कुरान के बारे में जो चाहें कहें, लेकिन वो अदालत गए, मैंने कहा था अदालत इसे एक्सेप्ट नहीं करेगी। अब वसीम रिजवी ने एक किताब लिखी है, जाहिर है कि वो भी एक बहुत बड़ी चीज है कि आपको संविधान हक देता है, अभिव्यक्ति का राइट देता है, आप जो चाहें लिखें। लेकिन आर्टिकल 19 जो है वो एक एब्सोल्यूट फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन नहीं देता। देश के कुछ कानून हैं, उन कानूनों से हम बंधे हुए हैं। यकीनन मैं बार बार कह चुका हूं कि कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के स्टूडेंट की हैसियत से मैं अनकंफर्टेबल हूं ब्लास्फेमी के लॉ से। मैं समझता हूं कि मॉडर्न जमाने में धर्मों को ब्लास्फेमी लॉ का प्रोटेक्शन नहीं मिलना चाहिए, लेकिन मॉडर्न जमाने में हेट स्पीच का प्रोटेक्शन मिलना चाहिए। जो किताब वसीम रिजवी ने लिखी है उसमें 295A बनता है नहीं बनता वो अलग बहस है। गो के उस 295 के इंग्रेडिएंट्स पढ़िए तो आपको समझ में आ जाएगा कि बनता है या नहीं। आज वो देश का कानून है। अमरिंदर सिंह की सरकार ने अभी 2.5-3 साल पहले ब्लास्फेमी के लॉ के लिए पंजाब में संशोधन किया और सजाएं बढ़ा दी। अगर आप बाइबल के, कुरान के, गीता के बारे में, गुरु ग्रंथ साहब के बारे में कोई गलत बात कहते हैं तो आपको पंजाब में बहुत सख्त सजा मिलेगी। इस पूरी किताब को मैंने एक एकेडमिक की हैसियत से पढ़ा, बहुत तकलीफ में पढ़ा। लगा कि ऑथर एक ऑथर की तरह नहीं लिख रहा, बल्कि उसका कोई सेल्फ इंटरेस्ट है, वो किसी प्रोपेगेंडे का शिकार है। शायद उसने ये किताब खुद लिखी है या नहीं लिखी, इस पर भी प्रश्न चिन्ह है। और प्रश्न चिन्ह इसलिए हैं क्योंकि किताब की पहली लाइन में वसीम रिजवी कह रहे हैं कि ये किताब दूसरी अन्य पुस्तकों, लेखों, वेबसाइट से लिए गए संदर्भों की प्रतिबंधित नहीं है और ये मानवता के लिए उन्होंने बड़ा काम किया है। आप हिंदी में नहीं समझे, मैं उर्दू में और इंग्लिश में समझा दूं। पहली लाइन में ऑथर कन्फेशन कर रहा है कि ये किताब मेरी ओरिजिनल किताब नहीं है, मैंने कुछ यहां से लिया, कुछ वहां से लिया, कुछ इधर से कोट कर दिया, कुछ उधर से कोट कर दिया। ये कन्फेशनल स्टेटमेंट आ गया वसीम रिजवी का पहली ही लाइन में कि इस किताब में ओरिजिनलिटी नहीं है। ये किताब कोई एकेडमिक हैसियत नहीं पा सकती क्योंकि ये पूरी किताब एक रेफरेंस बुक नहीं है। आप रेफरेंसेस की लिस्ट देखेंगे तो वो घटिया किस्म के ऑथर्स को कोट कर कर और पॉपुलर वेबसाइट्स को कोट कर कर एक किताब बनाई गई है। मैं इस किताब के बारे में जो बात कह रहा हूं वो इसलिए क्योंकि मैंने कॉपीराइट लॉ में पीएचडी की है। कॉपीराइट एक अलग मुद्दा है, इसका कॉपीराइट वसीम रिजवी को ही होगा। प्लेजरिज्म एक अलग मुद्दा है, इधर उधर से चीजों को चुराना एक अलग मुद्दा है, उस पर भी काम होगा और शायद कोई केस भी हो जाए वसीम रिजवी पर। वसीम रिजवी ने किताब में लिखा है कि उनका उद्देश्य किसी को चोट पहुंचाने का नहीं है, किसी धर्म के प्रचारक के विरुद्ध नहीं है, लेकिन पूरी किताब अगर आप पढ़ेंगे तो वो प्रॉफिट मोहम्मद के ऊपर इस तरीके के घटिया इल्जामात और अटैक हैं कि कोई भी आदमी जो मुसलमान होगा उसको लगेगा कि ये मेरे प्रॉफिट की बेइज्जती की जा रही है, इंसल्ट की जा रही है। वसीम रिजवी कह रहे हैं कि आके बातचीत कर लें, अगर बातचीत में मामला ना हो तो न्यायालय जाए। किसी को न्यायालय जाने के लिए वसीम रिजवी की परमिशन की जरूरत नहीं। क्या लॉ है इस मुद्दे पर मैं आज आपको बताने वाला हूं। इस किताब का क्या हश्र होने वाला है वो मैं आपको बताने वाला हूं। 19 चैप्टर हैं किताब में।
पूरा एक चैप्टर लेखक ने अपने बारे में लिखा है। ऐसी तो मैंने कोई किताब नहीं पढ़ी अपनी जिंदगी की सिवाय ऑटोबायोग्राफीज के, जिसमें एक चैप्टर में ऑथर अपने बारे में लिखे और वो मैंने आपको बता दिया कि वो सऊदी अरब गए और उन्हें धोखा दिया गया और उन्होंने अंडे खाए और तेल खाया। फिर तीसरे चैप्टर में उन्होंने इस्लामी आतंकवाद की बात की। यानी पूरा जो इस किताब का उद्देश्य है वो ये दिखाना है कि विश्व में जो आज आतंकवाद है वो मुसलमानों की वजह से है, वो प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से है। ये बात ना तो यूनाइटेड नेशंस ने मानी है, न भारत की सरकार ने मानी है, न विश्व के किसी राइटर ने मानी है कि आतंक का कोई धर्म होता है। आयरिश रिपब्लिकन पार्टी भी है, तमिल एलम भी है, बुद्धिस्ट भी जो कर रहे हैं म्यांमार में वो एक तरह का आतंक है, और मुसलमान भी पूरी दुनिया में जो कर रहे हैं उसमें भी आतंकवाद अक्सर नजर आता है। किताब है प्रॉफिट मोहम्मद पर, लेकिन जो उनका चौथा चैप्टर है इस नाम से, उसमें सिर्फ पेज नंबर 19, 20, 21, 22 4 पेजेस। यानी यह शख्स किताब इस्लाम के प्रॉफिट पे नहीं लिखना चाहता, इसका उद्देश्य कुछ और है। जिस तरीके से इस किताब के चैप्टर्स के टाइटल्स हैं उनसे ही पता चल जाएगा कि यह किताब प्रोपेगेंडा है, कोई एकेडमिक कंट्रीब्यूशन नहीं है, कोई नॉलेज क्रिएशन नहीं है, किसी डिबेट को जन्म नहीं देता, सिर्फ गालियां हैं, और गालियां किसी डिसेंट समाज में फ्रीडम ऑफ स्पीच में अलाउ नहीं।